हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम ये नहीं समझेंगे कि हमें स्टॉक्स कौन से ट्रेड करने हैं कल के लिए। आज हम ये समझेंगे कि मार्केट किस तरह आज बिहेव कर रहा है, हाउ द मार्केट हैज फॉलन दिस शार्पली, एंड हाउ आर द global markets they are faring, how is the crude oil doing, and how is the gold doing. So with that note, guys, let us get started. The chart that you see on the screen is nothing but your Nifty 50 on a daily time frame. Now, let's have a look at this chart. Let's zoom out a bit and see what's happening. अगर हम पीछे जाते हैं तो कोविड के एक बड़े फॉल के बाद, आफ्टर द बिग कोविड फॉल, market went above the 200-day moving average, right? And then ever since then, for the last almost 2 years, it has been trading above the moving average. And for the first time, it has dropped below the 200-day moving average. Now, 200-day moving average is obviously very, very significant, considering it is a long-term moving average, which shows us the overall long-term trend of the market. Now, if we zoom out and if we try to go little far, okay, what usually happens, for example, over here, it broke out the moving average over here, and then there was a strong downfall. In this case, when there was a downfall of the 200-day moving average, it started to consolidate. Correct. Let's go over here. Again, when it dropped sharply, it again started to consolidate for a heavy period of time. Let's again go back and see what are the other opportunities that we have seen when it comes to the 200-day EMA fall. Again, when the market falls below the 200-day moving average, we start to see some consolidation. Correct. Let's go back over here again. When it falls, below the 200-day moving average, we see some consolidation, and then there is a fall. Correct. So let's again go back. How far can we go? Right, market taking support at the EMA, the 200-day moving average. Again, if you see over here, it dropped sharply but recovered also very sharply from here. Right, let's go forward and understand this. Over here, it dropped, it again went above the moving average, it dropped, then it started to form a base at this point of time. Correct. So what do we understand by looking at the past data? Right, again a drop, and then the market starts to consolidate. So if you look at all the instances of the breakdown of the moving average, it does not mean that since the market has come below the moving average, it will fall like anything. What usually can happen is that the market can, stay below the moving average for a long period of time. It could be 2 months, 3 months, 4 months, right? And not necessarily that we may see a big fall coming in Nifty, right? So there has to be a fundamental news to drop Nifty, like for another, 15, 20, 25%. Reason being that the long-term nature of the stock market is bullish. Now, if I take you to something like monthly time frame, then you will understand. So what is the long-term nature when you look at the markets, right? Now, this is the 200-day moving average, right? The long-term nature of stock market is always bullish. So you need not to worry about your long-term holdings. Rather, this is a good time to add stocks in your portfolio. एंड ऐसे बहुत से आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे जहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि जब जब एक वॉर होता है उसके बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है. सो majority of the time we have seen that the market recovers all the losses that happens because of these wars, right? So उसके अगर कुछ आर्टिकल होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, ठीक है. और अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म नेचर क्या है स्टॉक मार्केट का, इट इज इन अ अप ट्रेंड. आप एक कोई अच्छा फंडामेंटल स्टॉक पकड़ लो, you take even a commodity, right? The long term nature of these instruments is always bullish. So do not worry about your long term holdings. आपको यही समझना है. If the stock is trading below 200 EMA, it does not mean that it will become zero or it will fall like anything, right? It can stay below the EMA for a longer period of time, and that is again one thing which we should consider over here. So obviously not a great time for any trader, right? Not a great time for any swing trader or short term trader, because the markets are likely to be very, very choppy. Clear? I hope this particular point is pretty much clear. What we are also seeing on a weekly time frame here is a double top formation. Can you see over here? This is a strong double top formation. So we may see the sell-off to continue, but as a long-term investor, you do not have to worry. And remember one thing, the market can remain choppy for a certain period of time. It's not going to fall to its knees. So do not worry. There is nothing to be worried about the markets, right? So
if you have some long-term holdings, stay in it, and swing and positional trades, well, yes, obviously you are staying away from it. I hope these are again few things which are pretty much clear. So if you are also a part of our Three Dots Premium community, where we share swing trading ideas, you will realize that in the last 3 months, not a single stock has been recommended. Not a single stock has been recommended. Now, the reason for the same is the volatility in the markets. If there is no clear direction, we don't really have to go long. Now, let's do one thing. Let's have a look at gold. Now, this is gold for you. Now, I'm going with the gold MCX, right? So over here, if we see, what does it say? It dropped, formed a base, it broke out this range, and now it's looking very, very bullish ever since it broke out of this range. Right. So very simple understanding in gold. Now, remember one thing, when we talk about asset classes, gold is considered to be a safe haven, right? It's like जब भी मार्केट में बहुत मंदी आती है, तो हम गोल्ड को बोल सकते हैं कि ये एक सेफ एसेट है. इट्स अ सेफ एसेट क्लास टू put money. And usually during these wars and during uncertain times, what usually happens is लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में पैसा डालते हैं, या कोई भी उनको जो सेफ एसेट लगता है, फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है, इन कमोडिटीज में पैसा डालते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंसिडर्ड है कि दिस इज अ बीट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटीज एंड ऑल ऑफ इट. ठीक है, अब हम जाके एक बार एक काम करते हैं, रशियन इंडेक्स को देखते हैं. ठीक है, अगर आप रशियन इंडेक्स देखोगे तो काफी वहां पे तो तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी है. तो आप देखिए, इट्स फॉलन लाइक एनीथिंग. इफ यू सी द फॉल इज ऑलमोस्ट 60%. 60% is the fall. If I take you to monthly time frame, you will realize that in 2016 this was where the market was trading, and let's say right now we are again back at these levels. So almost gains of 7 years wiped out in just 4 weeks, right? In just 4 months. So this is certainly very, very bad, right? ये बहुत ही खराब चीज है जो इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, बिकॉज ये रिटर्न तो वाहियात रिटर्न है. इट्स अ वेरी, वेरी बैड रिटर्न. अगर किसी ने रशियन इंडेक्स में बेट किया होगा तो 7 साल बाद उसका पैसा वहीं पड़ा है. सो ये ऑब्वियसली एक खराब टाइम है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जिसने इतनी मेहनत से अपने पोर्टफोलियो को इतनी हाइट्स पे लेके गया, लेकिन इन जस्ट वन बिग ड्रॉप इन जस्ट द लास्ट 4 months, it's wiped out everything. Now, the point is, if you look at the Russian index, if you can actually do homework as to how Russian index performs after it gives a breakout or a breakdown. तो ये September 16 से इसने एक अच्छा अपना लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया था, एंड वहां से एक अच्छी मोमेंटम आई थी, बट राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट. सो wars don't just hit people, it is also hitting the economy, right? So अब हम इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल लीडर्स ऑलरेडी अपनी फाइट कर रहे हैं, but yes, this is not a good thing, right? So let's move forward to other indexes. Like we can also have a look at what are the other index doing when it comes to the Nifty IT, right? Let's have a look at all the indices, so we'll get a understanding कि broader market क्या है. I mean obviously बहुत हालत खराब है broader market की. निफ्टी आईटी को तो हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि ये इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है कंपेयर टू एनी अदर इंडेक्स. में वीकनेस बहुत जल्दी हमें देखने मिल गई थी. यहीं पे हमें एक अच्छी खासी वीकनेस इस इंडेक्स में दिखी थी निफ्टी आईटी के अंदर, एंड अभी ये कंटिन्यू कर रहा है अपना डाउन साइड का मोमेंटम. ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन है ये एक ट्रेंड के टॉप में है. सो ये बहुत ही खराब साइन है निफ्टी आईटी के लिए. लेट्स गो टू निफ्टी ऑटो, राइट? देखते हैं निफ्टी ऑटो में हमें क्या दिख रहा है. अगेन निफ्टी ऑटो को आप देखोगे तो ये अभी तक तो बहुत इसमें स्ट्रेंथ थी. यस, अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी कोई इंडेक्स से तो अभी भी ये अपने एक सपोर्ट रीजन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट नॉट वेरी हेल्दी, राइट? अगर ये वापस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी डाउनसाइड की मोमेंटम दिख सकती है. तो हाल फिलहाल आपको एक चीज समझ में आएगी कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर की लगी पड़ी है. ठीक है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है. लेट्स गो टू निफ्टी बैंक. अभी जितने भी सेक्टर्स है ना, इसमें निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे ना तो इतनी गिरावट नहीं हुई थी. निफ्टी बैंक के अंदर भी आज इतनी गिरावट आ गई कि ऑब्वियसली आज इसमें कम से कम गिरावट आई है, अगर आप देखोगे तो 6% की, 6.5% की गिरावट, विच इज ऑब्वियसली नॉट आई मीन सस्टेनेबल नहीं होती है.
ठीक है, तो इस तरह का हमें ब्रॉडर इंडेक्स में आपको एक ब्रेकडाउन जरूर दिख रहा है हर जगह। अब हम जाते हैं निफ्टी फार्मा की तरफ। निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, देखते हैं क्या निफ्टी फार्मा के अंदर कोई स्ट्रेंथ दिख रही है। इसने तो गिव अप ही कर दिया ऐसा लग रहा है। Just look at this, it's like a free fall. So निफ्टी फार्मा की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। Let's go to निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल is also bleeding like anything। अगर आप देखोगे गजब का है, अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन देता है, so this is a very very bad sign for निफ्टी मेटल। Now I personally hold हिंडाल्को in a very big quantity, so let's see हिंडाल्को में क्या होता है। हाल फिलहाल these are not good sign for my metal portfolio। ये बहुत ही खराब साइन है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत डरावना स्ट्रक्चर है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ कुछ बायर्स अटके पड़े हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो ये सब बायर्स दे विल स्टार्ट पैनिकिंग, एंड दैट कैन लीड टू अ गुड सेल ऑफ इन निफ्टी मेटल। सो राइट नाउ आई थिंक निफ्टी मेटल इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेक डाउन। और ऐसा कोई सेक्टर अगर आप देख लो तो मतलब हर सेक्टर खराब ही है, मतलब हर सेक्टर आपको लगेगा खराब है। और अगर हम नेस्डैक को देख ले तो वहां पे भी ठीक ही है, वहां पे भी एक सेल ऑफ आपको देखने मिल ही रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो लेट्स गो प्राइस रेंज अगर हम निकाल दें, तो इसमें गिरावट मिली है ऑलमोस्ट 20% की। नाउ एक ऐसी चीज कही जाती है कि अगर स्टॉक मार्केट 20% अगर गिर जाता है तो उसे हम अब कहते हैं कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये करेक्शन नहीं, ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट एक अपने निचले स्तर में उसने जाने की शुरुआत अब कर दी है। तो ये 20% का फॉल है नेस्डैक के अंदर। ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा फॉल, अच्छी साइन नहीं है मार्केट्स के लिए। तो आर वी इन अ बेयर मार्केट? देखिए मार्केट ने इतनी बड़ी छलांग मारी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना गिरेगा लेकिन ये वापस ऊपर ही जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, द लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट इज बुलिश। सो अगर आपने निवेश किया है तो घबराइए मत, और अगर आपने अभी तक कभी भी निवेश नहीं किया है तो निवेश करने में घबराइए मत। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट ईदर लमसम अमाउंट और स्टार्ट योर एसआईपीज। ठीक है, सो यही है मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। अगर आप देखोगे तो अच्छा, निफ्टी एफएमसीजी को हम भूल गए, तो एक काम करते हैं, निफ्टी एफएमसीजी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी एक ऑब्वियसली एक सेक्टर है जिसको हम स्ट्रेंथ वाला समझते हैं, बट ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें बीटिंग नहीं हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप पकड़ लो आप, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप का आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको डर लगेगा, इतना खराब चार्ट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इट्स लाइक व्हाट इज दिस, आई मीन इतना बड़ा ब्रेकडाउन, इतना ज्यादा बड़ा ब्रेकडाउन। आई मीन आप देखिए खाली इस चार्ट को, दिस इज लाइक डेंजरस, राइट? दिस इज रियली बैड। एंड यही है। अब अगर आपके कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है तो आप घबराइए मत। सी, दिस इज समथिंग व्हिच हैज नॉट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये होता है और मार्केट वापस रिकवर जरूर करता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो ऑब्वियसली आई अज्यूम कि आपकी होल्डिंग बहुत होगी, होल्डिंग लंबी होगी मार्केट में। ठीक है, अगर हम मिड कैप को समझ लेते हैं तो मिड कैप की भी हालत ऐसी होगी। मैंने मिड कैप चेक नहीं किया है लेकिन आप देख लो, मिड कैप भी इसी तरह लुढ़क रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से इसने छलांग मारी, छलांग मारी, छलांग मारी, और उसके बाद ब्रेक डाउन। सो हर जगह हमें मंदी दिख रही है। सो ये एक फैक्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए ऐसे मौके में, ऐसे मार्केट्स के अंदर आपने अभी के हाल फिलहाल स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को ना कहना है, एंड यू आर सपोज टू बी फोकसिंग ऑन these long term bets, right? So this is a good time for you to get started with long term investing. अगर आपको डाउट है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे नहीं करूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, स्टार्ट विद एसआईपी, निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करिए। और यही है आज की मार्केट की चर्चा, जहां हमने स्टॉक्स को डिस्कस नहीं किया, हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे पूरा मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है, और या यही है। अगर मैंने कोई सेक्टर या मैं किसी कोई चीज भूल गया हूं तो मुझे प्लीज बताइए। और यस, यही है। और बाकी मेरी जो कुछ पोजीशंस है ओपन पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल हिंडाल्को है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, हिंडाल्को, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सबसे ज्यादा मुझे डर है हिंडाल्को का। देखते हैं बिकॉज वहां मेरा अमाउंट ज्यादा लगा पड़ा है। सो आई थिंक वो अच्छे प्रॉफिट में है अभी भी, सम गेन्स आर स्टिल लेफ्ट। सो देखते हैं कैसे होता है। वहां मेरी क्या एक्चुअली पोजीशन कुछ ज्यादा बुलिश है,
So I think I will have to take a decision soon on Hindalco as well. My exit is not triggered yet. इतना strong momentum था उसमें because I enter on monthly time frame breakouts. So let's see. I will update you on my Hindalco position as well. तो इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र. हम मिलेंगे बहुत जल्द कल के हमारे end of the week analysis में. So with that note, thank you so much guys. Thank you so much.